Dear students, last time we discussed the cyclic decomposition of permutations. Cyclic decomposition of permutations. In fact, what we did was we discussed that every permutation can be written as a cycle or as a product of cycles. So that is every permutation can be written as a cycle or product of cycles. In fact, we represented a permutation as product of transpositions. In fact, we represented a permutation, in fact, a given permutation as product of transposition. Transpositions mean a cycle of length 2 is called transposition. Then we defined an even permutation and an odd permutation. We defined even and odd permutations. And then we proved the theorem that the set of even permutations is normal subgroup of symmetric group. Let me explain what we did last time was let's take a set S, consider S is equal to 1, 2, so on up to n, a set consisting of n elements, that is a finite set. Then we know that Sn is the symmetric group in fact we call it a symmetric group of degree n. This group consists of all the permutations on S, which consists of all the permutations on S, and binary operation for this particular group is multiplication of permutations, and binary operation
in Sn is given by multiplication of permutations let me recall that a permutation is in fact a bijective mapping from S on to S. A bijective mapping is, this is what definition of permutation is. And a binary operation in NS, and the binary operation in NS is given by multiplication of permutations. And recall that then we defined in fact what we did was we considered the set of even permutations on the set S, that is alpha belonging to Sn, such that alpha is even permutation. Alpha is even permutation. And we denoted this set by capital A subscript n, an, and then we proved that an is normal subgroup of Sn. We proved that an is normal subgroup of Sn. So this is the theorem in fact we proved. So this means that the set of all the even permutations is a group. This particular group is called alternating group. So the group an is called alternating group. So alternating group is the group of even permutations. So the group of even permutations is called alternating group. So you can remember it as definition as well. So the group of even permutations is called alternating group. So this definition of alternating group. Now we have noted that an is subgroup of, in fact an is normal subgroup of Sn. So in particular we have noted that an is subgroup of Sn. Therefore we can talk about index of an in Sn. Let's make one more remark, that further note that number of elements in Sn, you know that very well, is equal to n factorial. And लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन की तादाद में, जब किसी फाइनाइट सेट पर आप परमुटेशंस लेते हैं तो आधी परमुटेशंस इवन होती हैं, आधी परमुटेशंस ऑड होती हैं. सो इवन परमुटेशन make
a group that is called alternating group, और इस alternating group के elements की तादाद या order of this particular alternating group is equal to half the permutations, half the number of permutations. So total permutations, number of elements in Sn, और an जो है इवन परम्यूटेशन की तादाद जो वो इनसे हाफ होगी, एंड देयरफॉर अगर आप ये देखना चाहें कि an का Sn में इंडेक्स क्या होगा, सो इंडेक्स ऑफ an in Sn will be equal to order of Sn divided by order of an, and this is equal to order of Sn divided by order of an is equal to order of Sn divided by 2, and you can simplify it to obtain 2. So index of an in Sn is 2. This means that there are exactly 2 distinct left or right, whatever you like, left or right. So there are exactly 2 distinct left cosets of an in Sn. So this is just a comment about alternating group. So alternating group जो है वो इवन परम्यूटेशन का ग्रुप होता है, और अल्टरनेटिंग ग्रुप का इंडेक्स जो है सिमेट्रिक ग्रुप में वो 2 के बराबर होता है, या यूँ कह लीजिए कि अल्टरनेटिंग ग्रुप के डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स की तादाद जो है वो 2 होती है. सो हैविंग सेड दैट and having recalled these things from our previous session, now let's come to a very important theorem of group theory, which is called Cayley's theorem. So Cayley's theorem. कैलेस का नाम इससे पहले भी आपने सुना हुआ है. जब हम टेबल्स बनाते हैं ग्रुप्स के लिए तो उनको भी हम कैलेस टेबल ही कहते हैं. तो ये थ्योरम प्रूव करने से पहले या थ्योरम की स्टेटमेंट लिखने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें. सो लेट्स कंसीडर एन एग्ज़ाम्पल. एक ग्रुप आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी सिंपल सा ग्रुप है और शायद सबसे आसान ग्रुप है जो हम जानते हैं. दैट इज़ 1 iota -1 and minus iota, and the binary operation is multiplication of complex numbers under multiplication. अब इस ग्रुप को अगर आप एक फाइनाइट सेट समझते हुए इस पर परमुटेशंस बनाएं या जी से लेकर जी तक बाइजेक्शंस 1-to-1 और ऑन-टू फंक्शंस अगर आप बनाएं तो नोट कीजिए कि उनमें से वैसे तो आप जानते हैं ये जो 4 एलिमेंट्स हैं तो ऐसी फंक्शंस 4 का फैक्टोरियल 24 बनेंगी, 24 परमुटेशंस बनेंगी. लेकिन इन परमुटेशंस में से मैं कुछ ख़ास परमुटेशंस लिखने लगा हूँ. इनको ज़रा नोट कीजिए एहतियात के साथ. नोट फॉलोइंग परमुटेशंस.
ऑन जी। तो एक परमुटेशन तो हम ले लेते हैं 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, और हम लेते हैं 1 गोज़ टू 1 आयोटा गोज़ टू आयोटा माइनस 1 गोज़ टू माइनस 1 माइनस आयोटा गोज़ टू माइनस आयोटा। एक ये हम परमुटेशन ले लेते हैं। एक परमुटेशन हम ये ले लेते हैं 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, और परमुटेशन हम लेते हैं 1 गोज़ टू आयोटा, आयोटा गोज़ टू माइनस 1, माइनस 1 गोज़ टू माइनस आयोटा, एंड देन माइनस आयोटा गोज़ टू 1। ये हम सेकंड परमुटेशन ले लेते हैं। एक परमुटेशन हम ये ले लेते हैं 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, और लेट्स टेक 1 गोज़ टू माइनस 1, आयोटा गोज़ टू माइनस आयोटा, माइनस 1 गोज़ टू 1, एंड देन माइनस आयोटा गोज़ टू आयोटा। और एक परमुटेशन हम ये ले लेते हैं 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा। तो इस केस में आप ले लीजिए 1 गोज़ टू माइनस आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा एनीवे। सो 1 गोज़ टू माइनस आयोटा, आयोटा गोज़ टू 1, माइनस 1 गोज़ टू आयोटा, एंड माइनस आयोटा गोज़ टू माइनस 1। तो जी में चूँकि 4 एलिमेंट्स हैं, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, तो 24 परमुटेशंस बनेंगी जी पर, लेकिन उनमें से हमने सिर्फ 4 परमुटेशन लिखी हैं। इस परमुटेशन का नाम मैं सिग्मा 1 रखता हूँ, सिग्मा 1। इसका नाम मैं सिग्मा आयोटा रख देता हूँ, मैं अभी वजह बताता हूँ इसकी। इसका नाम मैं सिग्मा माइनस 1 रख देता हूँ, और इसका नाम मैं सिग्मा माइनस आयोटा रख देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ये परमुटेशन हमने कैसे लिए हैं, इनके नाम हमने कैसे रखे हैं। अब देखिए ऐसे है कि ग्रुप जी जो है 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, इन एलिमेंट्स को सबसे पहले हमने 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया इन तमाम, तो यही चीज़ आ जाती है, इसलिए हमने इसका नाम सिग्मा 1 लिखा है। इसके बाद यही एलिमेंट्स 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, इनको हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 1 इंटू आयोटा आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1, आयोटा इंटू माइनस 1 माइनस आयोटा, एंड आयोटा इंटू माइनस आयोटा 1। फिर यही एलिमेंट्स 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, इन एलिमेंट्स को हमने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, माइनस 1 टू माइनस 1 1, माइनस 1 इंटू माइनस आयोटा आयोटा। इसलिए हमने इस परमुटेशन का नाम सिग्मा माइनस 1 रखा है, चूँकि हमने ग्रुप के एलिमेंट्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पर देखिए हमने ग्रुप के एलिमेंट्स जो कि 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा हैं, उनको हमने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया है। 1 मल्टीप्लाइड विद माइनस आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाइड विद माइनस आयोटा 1, माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद माइनस आयोटा आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड विद माइनस आयोटा माइनस 1। तो ये 4 परमुटेशन ग्रुप जी के एलिमेंट्स पर हमने डिस्कस किए हैं, और ये परमुटेशन हमें हासिल होती हैं ग्रुप के एलिमेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से। जैसे पहली परमुटेशन ग्रुप के एलिमेंट्स को 1 से मल्टीप्लाई करने से हासिल होती है, दूसरी परमुटेशन ग्रुप के एलिमेंट्स को आयोटा से मल्टीप्लाई करने से हासिल होती है, तीसरी परमुटेशन जो है वो ग्रुप के एलिमेंट्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने से हासिल होती है, और चौथी परमुटेशन जो है वो ग्रुप के एलिमेंट्स को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने से हासिल होती है। तो ये वो परमुटेशन हैं जो ग्रुप के एलिमेंट, ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को ग्रुप के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके हासिल होती हैं। सो हैविंग सेड दैट, हम इसी ग्रुप जी का कैलेस टेबल बना लेते हैं, जो आपको याद होगा इससे पहले हमने बना रखा है। नाउ कंसीडर
the Calais table. Calais table for जो हमारा ग्रुप जी था उसके लिए, और लेट्स मेक दैट टेबल. And you know this table very well. बाइनरी ऑपरेशन आपको याद होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. तो आप यहाँ पर 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस 1 एंड माइनस आयोटा आप रो में लिख लीजिए, और यही एलिमेंट्स आप कॉलम में भी लिख लीजिए. 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा. We have multiplication here at this place. So table goes like this: 1 iota minus 1 minus iota, then iota के साथ it is iota minus 1 minus iota and 1, then minus 1 के साथ this is minus 1 minus iota, minus 1 into minus 1 plus 1, minus 1 to minus iota is iota, then minus iota into 1 is minus iota, then we have 1 here, then we have iota at this place, and then minus iota into minus iota is minus 1. तो देखिए ये टेबल जो हमने अभी बनाया है, अगर आप गौर करें तो इससे पहले हमने जो परमुटेशन को डिस्कस किया है, मतलब पहली परमुटेशन जो सिग्मा 1 थी उसकी जो सेकंड रो है ना वो यही है जो यहाँ पर है. दूसरी परमुटेशन जो आयटा के साथ है उसकी सेकंड रो वो है जो यहाँ पर है. इसी तरह से तीसरी परमुटेशन जो -1 के लिए है उसकी सेकंड रो वो है जो कि यहाँ पर है, और फिर माइनस आयटा वाले की सेकंड रो वो है जो कि यहाँ पर है. तो ये दरअसल यही रोज़ हैं जो आपको वहाँ पर परमुटेशन में मिलती हैं. और परमुटेशन का नाम आपको याद होगा, हमने सिग्मा 1 सिग्मा आयटा सिग्मा -1 सिग्मा माइनस आयटा रखा हुआ है. अब आप यूँ करें कि इस टेबल में हर एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग परमुटेशन के साथ रिप्लेस कर लीजिए. सो रिप्लेस ईच एलिमेंट बाय करस्पॉन्डिंग परमुटेशन. जो भी उसकी परमुटेशन है उसके साथ रिप्लेस कर दीजिए. तो ऐसा करने से मैं इसी टेबल को दोबारा यहाँ पर बना देता हूँ. ये काफ़ी स्पेस हमारे पास है. तो हम 1 की जगह पर हम सिग्मा 1 लिख देते हैं, आयटा की जगह पर हम सिग्मा आयटा लिख देते हैं, -1 की जगह पर हम सिग्मा -1 और माइनस आयटा की जगह पर हम सिग्मा माइनस आयटा. एंड देन इसी तरह फिर यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा आयटा सिग्मा -1 एंड सिग्मा माइनस आयटा, और इनको भी रिप्लेस कर दीजिए. तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा आयटा सिग्मा -1 सिग्मा माइनस आयटा. यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा आयटा सिग्मा -1 सिग्मा माइनस आयटा, एंड देन दिस इज सिग्मा 1, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा -1 सिग्मा माइनस आयटा, देन सिग्मा 1 एंड देन सिग्मा आयटा, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा माइनस आयटा सिग्मा 1 सिग्मा आयटा एंड देन सिग्मा -1. अब आप अपने तौर पर अगर आप चाहें तो आप चेक करके देख लीजिए कि अगर आप इस टेबल में आप परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशन को इस्तेमाल करें और इनको मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ यूँ फिर इसको इसके साथ इस तरह से, तो अगर आप परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके अगर आप इस टेबल को रिकंस्ट्रक्ट करें तो यही टेबल बनेगा. आप देख सकते हैं कि ये टेबल जो है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस के अंडर आपको एक ग्रुप देता है.
So we know that in fact you should verify that. You may verify that the second table also gives a group under multiplication of permutations. Multiplication of permutations. और अगर आप गौर करें तो ये दोनों टेबल एग्जैक्टली एक जैसे हैं, सिर्फ सिंबल डिफरेंट है, अदरवाइज दोनों ग्रुप्स का स्ट्रक्चर एक जैसा है। आप एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 गोज़ टू सिग्मा 1, आइटा गोज़ टू सिग्मा आइटा, -1 गोज़ टू सिग्मा -1, माइनस आइटा गोज़ टू सिग्मा माइनस आइटा। तो ये एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। सो लेट मी नोट दैट इन फैक्ट ये जो ग्रुप जी है दिस इज़ आइसोमॉर्फिक विद, ये जो सेकंड ग्रुप बना है इसे हम कोई नाम हम रख देते हैं, इसका नाम हम H कह लेते हैं, इज़ आइसोमॉर्फिक विद H वेयर H इज़ इक्वल टू H हमने इसका नाम रखा है सिग्मा 1 सिग्मा आइटा सिग्मा -1 सिग्मा माइनस आइटा। तो ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। फर्दर ये बात भी नोट कीजिए कि जी जो है ये तो आइसोमॉर्फिक है इस ग्रुप के जिसे हमने H कहा है, और H जो है ये सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है। ये जो ग्रुप G है इस ग्रुप G पर बनने वाली तमाम परम्यूटेशंस का जो सेट है, जो ग्रुप होता है, तो ग्रुप G जो है वो ग्रुप H के आइसोमॉर्फिक है, और H ग्रुप जो है वो ग्रुप G पर बनने वाली तमाम परम्यूटेशन का जो ग्रुप बनता है जिसमें 24 परम्यूटेशंस हैं। मैं इसको एज ए नोट लिख देता हूँ। नोट ग्रुप G में चूँकि एलिमेंट्स की तादाद 4 है तो ग्रुप SG का जो ऑर्डर है वो 4 का फैक्टोरियल होगा जो कि 24 के बराबर है। तो ये बात ज़रा नोट कीजिए कि जब हम सिमेट्रिक ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हम यहाँ SG लिखने की बजाय हम SN लिखा करते थे। असल में वहाँ सेट हम S लेते थे, आज भी हमने ये काम शुरू में किया था, सेट S लेते थे जिसमें 1 2 3 4 अप टू N एलिमेंट्स होते थे, तो हम सिमेट्रिक ग्रुप को SN लिखा करते थे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट जो है ना फाइनाइट सेट जो है ना उसके अंदर एलिमेंट्स इसी तरह के हों 1 2 3 सो ऑन अप टू N। फाइनाइट में यानी एलिमेंट्स किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, ABC हो सकता है, XY हो सकता है, अल्फ़ा बीटा गैमा हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई फाइनाइट सेट दे दिया जाए तो उस फाइनाइट सेट से उसी सेट तक बाइजेक्टिव मैपिंग जो है वो परम्यूटेशंस कहलाती हैं, और उन परम्यूटेशंस का सेट जो है वो अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशंस एक ग्रुप बनाता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेट S के एलिमेंट्स 1 2 3 4 सो ऑन अप टू N लेते हैं या सेट S के एलिमेंट्स आप 1 आइटा -1 माइनस आइटा लेते हैं। तो अगर सेट S के एलिमेंट्स 1 आइटा -1 माइनस आइटा हैं तो आप इन पर बनने वाली परम्यूटेशन का जो ग्रुप है उसे आप चाहें तो S4 भी लिख लें, लेकिन आप इसे हम SG लिख रहे हैं ताकि G के साथ हमारा ताल्लुक कायम रहे। सो एनीवे, तो जो बात हमने नोट की है वो ये कि ग्रुप G अगर हमें दे दिया जाए तो ग्रुप G का हर एलिमेंट जो है वो आपको G पर एक बाइजेक्शन देता है, एक परम्यूटेशन देता है,
और इन तमाम परमुटेशन का जो सेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन एक ग्रुप बनाता है जो कि ग्रुप जी के आइसोमॉर्फिक होता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टू मेक. सो let's come to comment number 3. So in fact, if we are given a group G, then for let G be हम इसी को एग्जाम्पल के तौर पर इसी को हम ज़हन में रखते हैं और वी मेक अ कमेंट कि इन फैक्ट फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जी, in fact for any a belonging to g, यानी कि g अगर आपका ये है तो a के माने जो है 1 आइटा -1 माइनस आइटा कुछ भी हो सकते हैं. तो in fact for any a belonging to g we have, हमें एक बाइजेक्शन मिल जाती है. we have, उस बाइजेक्शन को हम सिग्मा a लिख लेते हैं. जैसे ऊपर आपको याद है हमने सिग्मा 1 सिग्मा आइटा सिग्मा -1 सिग्मा माइनस आइटा लिखा था. ये हमें एक बाइजेक्शन या परमुटेशन, बाइजेक्शन और परमुटेशंस, तो हमें बाइजेक्शन मिल जाती है जी पर फ्रॉम जी इंटू जी गिवन बाय कि आप सिग्मा ए को ग्रुप जी के किसी भी एलिमेंट एक्स पर अगर अप्लाई करेंगे तो जो आप जो है वो ए मल्टीप्लाइड विद एक्स आएगा. और यही आपको याद होगा काम हम ऊपर कर रहे थे जब हम 1 की बात कर रहे थे परमुटेशन में, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे. आइटा की बात कर रहे थे तो आइटा से मल्टीप्लाई कर रहे थे. तो सिग्मा ए एक्स के माने हैं ए मल्टीप्लाइड विद एक्स एंड दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी. तो ग्रुप जी का कोई भी एलिमेंट हमें दे दिया जाए तो हमें ये एक परमुटेशन मिल जाती है विच इज़ अ परमुटेशन. विच इज़ अ परमुटेशन. तो ग्रुप जी का हर एलिमेंट आपको एक परमुटेशन देता है. परमुटेशन मीन्स बाइजेक्टिव मैप. तो ग्रुप जी का हर एलिमेंट आपको परमुटेशन देता है. मैं ये भी कमेंट लिख देता हूँ कि हमारे इस केस में इन आवर केस ग्रुप जी के एलिमेंट्स की तादाद 4 है. आप जानते हैं 1 आइटा -1 एंड माइनस आइटा. तो ग्रुप जी के एलिमेंट्स की तादाद 4 है. देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल therefore the set of all permutations on elements of G, the set of all permutations on elements of G is given by उसे अगर हम चाहें तो हम उसे S4 भी लिख सकते हैं. S4 चूँकि 4 एलिमेंट्स हैं लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि हम इसे SG लिख लें ताकि हमारा G के साथ जो ताल्लुक़ है वो कायम रहे. S4 और SG. सो विच इज़ अ ग्रुप which is symmetric group in fact. Which is symmetric group and इसके एलिमेंट्स की तादाद जो है S4 के या SG के इस केस में एलिमेंट्स की तादाद जो है ना वो 4 का फैक्टोरियल होगी जो कि 24 होगी. और जो हमारा ये ग्रुप था जो सिर्फ परमुटेशंस की हद तक जो चीज़ें थी, अब देखिए ये 24 जो है ना ये तो ग्रुप जी के एलिमेंट्स पर तमाम परमुटेशन का सेट है और तमाम परमुटेशंस की तादाद है जो है वो 24 है.
और उन परमुटेशन में से वो परमुटेशन जो ग्रुप के एलिमेंट्स से हमें हासिल होती हैं उनकी तादाद 4 है, और ये परमुटेशन ख़ुद भी एक ग्रुप बनाती हैं, और ये ग्रुप जो है वो ग्रुप जी के आइसोमार्फिक होता है। ये बस हमारी ऑब्जर्वेशन है। और यही ऑब्जर्वेशन जो है वो थ्योरम की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। हम अभी डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। जो हमने नोट किया हुआ है वो ये है कि वी हैव नोटेड दैट कि ये जो ग्रुप जी है जो कि है 1 आइटा माइनस 1 माइनस आइटा, ये ग्रुप आइसोमार्फिक है सिग्मा 1 सिग्मा आइटा सिग्मा माइनस 1 सिग्मा माइनस आइटा के, और ये ग्रुप है जिसमें बाइनरी ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस। और ये जो ग्रुप है, ये पीछे भी हमने इसको एच कहा था, दिस इज सब ग्रुप ऑफ, ये जो तमाम परमुटेशन है जिनकी तादाद 24 है जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, तो दिस इज सब ग्रुप ऑफ एस जी। सो वी हैव, in fact we have a group homomorphism, in fact we have a group homomorphism एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो इन दोनों के दरमियान है जो इनको आइसोमॉर्फिक कर देता है। जिस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात हम अब करने जा रहे हैं वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, उसे हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई जो ग्रुप जी के एलिमेंट्स पर एक्ट करेगा, और रिज़ल्ट हमारे पास आएंगे ग्रुप जी पर जो परमुटेशन का ग्रुप बनता है, ग्रुप जी के एलिमेंट्स पर जो परमुटेशन का ग्रुप एस जी बनता है वहाँ तक ये। और ये बड़ा सिंपल सा है ये होमोमॉर्फिज्म गिवन बाय फाई को अगर आप ग्रुप जी के किसी एलिमेंट ए पर इफ़ेक्ट दें तो फाई ए का जवाब जो है वो सिग्मा ए आ जाएगा। अभी पीछे हम जो डिस्कस कर रहे थे सिग्मा 1 सिग्मा आइटा सिग्मा माइनस 1 सिग्मा माइनस आइटा, तो ग्रुप के हर एलिमेंट से हमें एक परमुटेशन हासिल होती है, ग्रुप के हर एलिमेंट से हमें एक परमुटेशन हासिल होती है। जैसे पीछे हमने सिग्मा 1 सिग्मा आइटा सिग्मा माइनस 1 सिग्मा माइनस आइटा हमने डिस्कस किया था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। हम प्रूव करेंगे कि दिस इज़ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इन फैक्ट। सो दिस वाज कमेंट नंबर 4। नाउ वी कम टू next we come to the statement of the theorem. So theorem that is Cayley's theorem. ये जो शुरू में हमने मेंशन किया था, हम अभी तक से इसको डिस्कस कर रहे थे, इसकी बैकग्राउंड इसकी अंडरस्टैंडिंग हम ज़रा डेवलप कर रहे थे अपनी। Now we will state the theorem and we will prove it. So let G be a finite group. इसे जनरल सेटिंग में भी प्रूव किया जा सकता था, लेकिन आपके लेवल पर हम इसे इसी फॉर्म में प्रूव करते हैं कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जी इज़ इक्वल टू एन, के ग्रुप जी में एलिमेंट्स की तादाद n है। जैसे हमारी एग्जांपल में ग्रुप जी में एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 4 थी। सो एंड ऑर्डर ऑफ जी इज़ इक्वल टू n, देन जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू, दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव, देन जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू
isomorphic to a subgroup of SG। ये नोट कीजिए कि SG के माने हैं G के एलिमेंट्स पर बनने वाली तमाम पॉसिबल परम्यूटेशंस का ग्रुप SG इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ SG। और अगर आप चाहें तो आप इसे इस शक्ल में भी कह सकते हैं कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस, और every finite group is isomorphic to a group of permutations। So let's come to the proof now। पिछली एग्जाम्पल को अगर आप ज़हन में रखें तो प्रूफ इज़ क्वाइट सिंपल। सो इन फर्स्ट स्टेप व्हाट वी डू इज़ फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जी वी डिफाइन अ फंक्शन, जो पीछे हम कर रहे थे। फॉर एनी A belonging to G, we define a function that is represented by sigma A, and this is a function from G into G। So we define a function from G into G, and this function is given by, जैसे ऊपर हमने लिखा था, this is given by सिग्मा A का इफ़ेक्ट ग्रुप G के किसी भी एलिमेंट X पर होगा कि आप A को सीधा सीधा X के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सिग्मा A का X पर इफ़ेक्ट A X होगा। दिस इज फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू G। इस पर थोड़ी सी कम है लेकिन मैं यहीं लिख देता हूँ, फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू G। अब हम प्रूव ये करेंगे कि ये जो सिग्मा A जो है ये एक बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन मीन्स दिस इज़ अ परम्यूटेशन। सो वी शैल प्रूव दैट sigma A is a permutation। परमुटेशन के माने हैं बाइजेक्शन, और बाइजेक्शन 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन। हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है ये 1-to-1 और ऑन टू है। तो याद रखिए हम ये नहीं प्रूव करने जा रहे कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ये वी आर नॉट सेइंग दैट। हमने सिर्फ इतना करना है कि हमने प्रूव करना है कि सिग्मा ए जो है ये परमुटेशन है या 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो पहले हम इसको 1-to-1 प्रूव करते हैं, फिर हम इसे ऑन टू प्रूव करेंगे। बाइजेक्शन बनने के साथ ही ये परमुटेशन हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रूव दैट सिग्मा ए इज 1-to-1, तो 1-to-1 प्रूव करने के लिए ख़ास मेथड होता है। आपको याद होगा कि हम कोई दो एलिमेंट्स पर फंक्शन का इफ़ेक्ट इक्वल लेते हैं और प्रूव करते हैं कि वो दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं। तो उसके लिए फिर आप यूँ कीजिए कि लेट एक्स वाई जो है हम कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं इस ग्रुप जी के। लेट एक्स वाई बिलोंग टू जी, और फ़र्ज़ कीजिए कि एक्स और वाई दोनों पर सिग्मा ए का जो इफ़ेक्ट है वो एक्स पर और सिग्मा ए का जो इफ़ेक्ट है वाई पर अगर हम लें तो ये दोनों जो अब आपस में बराबर आ जाते हैं। तो हम प्रूव करेंगे कि एक्स और वाई आपस में बराबर हैं। हैविंग डन दैट ये प्रूव हो जाएगा कि सिग्मा ए इज़ 1-to-1। देन अब देखिए अगर ऐसा होता है तो फिर
सिग्मा ए का एक्स पर इफेक्ट जो है वो आप जानते हैं ए एक्स होगा, सिग्मा ए का वाई पर इफेक्ट जो है वो ए वाई होगा, एंड देयरफॉर आप दोनों तरफ ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करें, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए वाई, एंड देयरफॉर अब आप एसोसिएट लॉ यूज़ करें तो ये आ जाएगा ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए वाई, एंड देयरफॉर ए इनवर्स ए जो है वो आप जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह से ए इनवर्स ए यहाँ पर भी ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आ जाएगा ई वाई, और ई एक्स इज इक्वल टू एक्स, ई वाई इज इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वाई। हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वाई।